أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 213 پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے پچھلے لیسن میں ہم 212 آیت پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس نہیں کیے تھے 212 کے، وہ اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 212 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوبصورت بنا دی گئی، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ اس سے پچھلی ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان ان کے برے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ خوبصورت کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ اب ہم ان دونوں چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک اور بات پچھلی آیتوں میں سے پڑھی تھی جس میں ہمیں سکھایا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کی آیتوں میں فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو مومن بھی تو اللہ سے دنیا کی زندگی میں حسنۃ مانگ رہا ہے، جس کے بہت سے معنی ہیں، جس کا ایک معنی حسن سے بھی ہے، خوبصورتی سے ہے۔ تو بے شک مومن کے لیے بھی دنیا میں خوبصورتی بھی ہے اور خوشیاں بھی ہیں، جیسے ہمیں بھی مزے مزے کا کھانا اچھا لگتا ہے، خوبصورت ڈریس پہننا اچھا لگتا ہے، بڑا گھر بڑی گاڑی اچھی لگتی ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ غلط ہے؟ ایک شوہر کو اس کی بیوی خوبصورت لگتی ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کی پسند کی چیزیں، عورتیں یعنی کہ ان کی بیویاں، بیٹے یعنی کہ ان کی اولادیں، سونے چاندی کے ڈھیروں یعنی کہ مال و دولت، سندر گھوڑے یعنی کہ سواری یا گاڑیاں، مویشی اور کھیت یعنی کہ انویسٹمنٹس اینڈ پروڈیوس کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کی محبت، ان چیزوں کی اٹریکشن ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر سورہ الاعراف آیت نمبر 32 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور رزق کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ یعنی جو خوبصورت چیزیں، جو پاک چیزیں، جو رزق اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 212 میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک خواہش جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے اس کے لیے ایک جائز اور حلال طریقہ بھی رکھا ہے اسے حاصل کرنے کا، لیکن جب تک انسان اللہ کے طے کیے حدود میں رہ کر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو وہ صحیح ہے۔ جیسے اچھا کھانا پینا انسان کا شوق ہے، تو اللہ نے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں دنیا میں بنائی جس کی خوشبو، ذائقہ، رنگ، سواد سب اچھا ہے، اور کہا کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کو، آلموسٹ ہر چیز جو کھانے پینے کی اللہ نے دنیا میں بنائی ہے اس کو حلال کہا ہے، صرف کچھ چیزوں کو چھوڑ کے جنہیں حرام کہا ہے۔ پھر انسان کو مال کا شوق ہے، مال میں ہر چیز آ جاتی ہے، پیسہ، دولت، زمین جائیداد، سونا چاندی، گاڑی، فرنیچر، یہ سب کچھ مال ہے۔ تو مال کو کمانے کے جائز اور حلال طریقے بھی دیے ہیں، صلاحیت بھی دی ہے، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھی گاڑی سب کی اجازت دی ہے۔ ایک مرد اور عورت کے بیچ ایک اٹریکشن ہوتا ہے، اس کے لیے حلال طریقہ ہے نکاح۔ پھر گھومنے پھرنے کے لیے خوبصورت پہاڑ، ندیاں، جھرنے، پیڑ پودے اور بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ یعنی ہماری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کا ایک حلال طریقہ رکھا ہے اللہ نے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، کبھی ہمارے پاس رہتی ہے اور کبھی ہم سے چلی جاتی ہے، اور جب ہمیں موت آئے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے پاس جو ہے یعنی کہ جنت، وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
लेकिन जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, आखिरत का इनकार करते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक ही बार जीते हैं इस दुनिया में, आफ्टर ऑल वी लिव ओनली वंस, जो कि सच नहीं है। इसके बाद भी एक जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। लेकिन वो चाहते हैं कि इसी जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिल जाए, बिना किसी लिमिट के। तो हर चीज को हासिल करने के लिए वो हद से आगे निकल जाते हैं। जैसे अगर किसी को पैसा कमाना है, तो चाहे वो हराम तरीका हो, चाहे हलाल तरीका हो, चाहे सही सही तरीका हो, चाहे गलत तरीका हो, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो उसमें अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो भी ठीक है, अगर किसी को धोखा देना पड़ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि आखिरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जजा सजा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो कुछ है उनके लिए ये दुनिया की जिंदगी है। तो बस इसे ठीक करना है, इसमें हमें सब कुछ मिल जाए। और कुछ लोग पैसा कमाने में इतने मसरूफ हैं, इतने बिजी हैं कि उन्हें ना तो अल्लाह की इबादत का ख्याल है, ना उनकी खुद अपनी सेहत का ख्याल है, ना बीवी बच्चों का, ना फैमिली का, किसी का ख्याल नहीं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है पैसे का। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिसके पीछे इंसान भाग रहा है। कोई इल्म के पीछे भाग रहा है, उसे डिग्रियां चाहिए, एक डिग्री के बाद दूसरी डिग्री चाहिए। कोई किसी और चीज के लिए भाग रहा है, कोई कोई पार्टीज और एंटरटेनमेंट के लिए भाग रहा है। यानी जिस चीज की ख्वाहिश है या जिस चीज की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। चाहे हलाल है, चाहे हराम है, चाहे तरीका सही है, चाहे गलत है, किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन मोमिन का हाल इससे अलग है। मोमिन दुनिया के मजे तो लेता है, लेकिन एक हद में रहकर, क्योंकि उसे पता है कि आखिरत की जिंदगी है और इससे बहुत ज्यादा अच्छी है और हमेशा बाकी रहने वाली है। उसमें ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा, बेहिसाब मिलेगा और उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो। जी हाँ, हराम ख्वाहिशात भी। इंसान की हर एक ख्वाहिश, चाहे वो हराम हो, अगर वो दुनिया में उससे सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि अल्लाह ने मुझे इससे रोका है, अल्लाह ने मुझे इससे मना किया है और मैं ये नहीं कर सकता, उसकी जन्नत में वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएगी। तो अल्लाह ने ये सब कुछ एक इम्तिहान के तौर पर रखा है, ताकि देखा जाए कि कौन इन चीजों में उलझकर दुनिया में खो जाता है और कौन इन सब के बावजूद अपने रब को याद रखता है, अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताता है। कि हम हमारी ख्वाहिशात को एक लगाम लगाते हैं कि बस ये हम कर सकते हैं और इसके आगे हम नहीं जा सकते। अगर इन हदों को हमने पार किया तो फिर आखिरत में हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो अब आपको यहां से वो दुआ जो हमने पीछे सीखी थी ठीक से समझ में आ गई होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो एक काफिर के लिए बुरी चीजें खूबसूरत बना दी गई, हद से गुजरना खूबसूरत बना दिया गया। कहा गया कि खूबसूरत बना दी गई दुनिया की जिंदगी। क्या मतलब है इस बात का? ये जरूरी है कि हम इसे ठीक से समझें। आज अब देखें पूरी दुनिया में कितनी सारी अट्रैक्शंस हैं और सबसे बड़ी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसको इतना जरूरी बताया जाता है कि हर एक इंसान का हक है कि उसे अपना मी टाइम मिले, वो खुद को एंटरटेन कर सके। एंटरटेनमेंट के नाम पे फाहिशा, बेहयाई, वॉयलेंस, यहाँ तक कि बच्चों के गेम्स में और कार्टून्स में भी ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों को दिखाई जाती है। उसके अलावा आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, फोमो। फोमो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और सोशल मीडिया पे हर चीज जो क्रिएट की जाती है उसमें एक फोमो भी क्रिएट किया जाता है। यानी लोगों को डराया जाता है इस बात से कि ऐसा ना हो कि मेरा कुछ मिस हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, या लोगों के अंदर इतना शौक जगाया जाता है कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट एपिसोड मेरा मिस हो जाए, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यानी अगर कोई टीवी सीरीज है तो मेरा कोई एपिसोड मिस ना हो जाए, अगर कोई सोशल मीडिया अपडेट है तो ऐसा ना हो कि मैं मिस कर दूं उसको, या अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है तो ऐसा ना हो कि मैं मिस कर दूं और मैं पुराना वर्जन यूज करती रहूं, या मेरा कोई फोटो अगर मैंने डाला है तो उसमें मुझे कितने लाइक्स मिले हैं, कितने सब्सक्राइब मिले हैं। यानी कंटिन्यूअसली आप उस प्रोसेस में रहते हो और आपको ये फील होता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ मिस कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको मिस कर दूं। यानी यहाँ तक कि एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ये क्रिएट किया जाता है। जब कोई चीज पढ़ाई जाती है सोशल मीडिया पे तो फिर उसके अंदर एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं।
उसके अलावा एड इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जहां पे इंसान को कंज्यूमरिज्म की तरफ खींचा जा रहा है। एड बनाने वाली कंपनीज लोगों के अंदर कमी या महरूमियत का एहसास पैदा करती है। मतलब ऐसे दिखाती है कि जैसे तुम्हारे पास कुछ चीज नहीं है, तो जब तक तुम उस चीज को ले नहीं लेते, तुम्हारी लाइफ अधूरी है। एड इंडस्ट्रीज का काम सिर्फ बेचना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे इमोशंस और सोच को इन्फ्लुएंस करना होता है। जैसे अगर कोई परफ्यूम का ऐड है, तो वो दिखाते हैं कि अगर आपने परफ्यूम लगाया तो लड़कियां आपके पास आ जाएंगी। या कोई मोबाइल फ़ोन का ऐड है, तो वो दिखाते हैं कि जो तुम्हारा पुराना मोबाइल फ़ोन है, उसे यूज़ करना बेकार है, जब तक कि तुम नया नहीं ले लेते। कोई फेयरनेस क्रीम है या फैशन है या कार है या फूड है, यानी हर चीज़ में ये चीज़ छुपी हुई है कि मुझे और चाहिए और बेहतर चाहिए, पुराना बेकार हो गया है। ये ज़रूरत नहीं बताते, बल्कि एक फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन बताते हैं। कमी, आपको एक कमी का एहसास दिलाते हैं। सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए महँगी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, ताकि आम आदमी को ये लगे कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं पीछे हूँ। अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए तो मैं भी क्लासी, मॉडर्न और सक्सेसफुल लगूँगा। एड इंडस्ट्री तुम्हें ये दिखाती है कि लग्ज़री इज़ नॉर्मल। तुम तभी कंप्लीट हो जब तुम ये सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकोगे। और इसका असर हर एक पर हो रहा है। बड़ों पर भी, बच्चों पर भी, अमीर पर भी, गरीब पर भी। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। घर हो तो आलीशान होना चाहिए, गाड़ी हो तो बड़ी होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा मोबाइल सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, तो वो ग्रैंड होना चाहिए। शादी का फंक्शन हो तो वो इतना ग्रैंड होना चाहिए कि चाहे मुझे उसके लिए बैंक लोन लेना पड़े, चाहे उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इंटेंशनली पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, ताकि लोग फिजूल की बातों में फंसे रहें, अल्लाह को भूले रहें, जिंदगी के असल मकसद को भूले रहें, दुनिया में खोए रहें। ये है दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत बनाना। हमें संभलना होगा। ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है। हम सबको पता है कि एक दिन हमें मौत आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपना मकसद क्लियर रखना होगा, खुद को और बच्चों को इन फितनों से बचाना होगा। दुआएं करनी होगी अल्लाह से कि हमें इन फितनों से बचा कर रखे। फिर अल्लाह ने इसी आयत में हमें बताया कि जो लोग अल्लाह की बताई हुई हदों में रहते हैं, तो वो जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, वो उनकी मजाक बनाते हैं। काफिर मोमिनों की मजाक बनाते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। फिर कहा गया कि जिन लोगों ने तकवा किया, फिर कहा गया लेकिन जिन लोगों ने तकवा किया, खुद को गुनाहों से रोक लिया, वो लोग मजाक उड़ाने वालों से ऊपर होंगे दर्जों में कयामत के दिन। और फिर आखिरी बात जो इस आयत में कही गई, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, कि रिस्क देता है अल्लाह जिसे चाहता है, जिसे वो चाहता है बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। बिगैर हिसाब से बहुत से माने बनते हैं। एक माना तो ये बनता है कि अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे दे। इसका एक माना मुहासिबे के मानों में है कि उससे कोई पूछ नहीं सकता कि इसे इतना क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अल्लाह चाहे तो फिरौन और कारून जैसे काफिरों को दुनिया की सारी दौलत दे, या सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी को दुनिया की सारी हुकूमत दे। किसी काफिर को दे या मोमिन को दे और कितना दे, उससे कोई पूछ नहीं सकता। और इसका दूसरा माना यह है कि अल्लाह जब अता करता है तो उसे हिसाब रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो अता करता है तो उसके खजानों में कुछ भी, एक रत्ती भर भी कमी नहीं होती। उसे ये देखना नहीं पड़ता कि मेरे पास कितना है तो मैं और अब आगे कितना दे सकता हूं। ऐसे इंसानों को ये सारे अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, अल्लाह को कोई अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं। तीसरा माना यह है कि जब वो किसी को अता करता है कोई चीज, तो उससे बेशुमार दूसरे फायदे भी उसे नसीब होते हैं, जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। जैसे अगर उसने किसी शख्स को सेहत दी है, तो सेहत की वजह से वो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खा पी सकता है, ये भी अल्लाह का रिस्क है। सेहत की वजह से वो कमाता है और दौलत उसके पास आती है, ये भी अल्लाह का रिस्क है। सेहत की वजह से वो घूमता फिरता है, अपने घर वालों के साथ वक्त बिताता है, ये भी अल्लाह का रिस्क है। तो एक अल्लाह की अता की वजह से और दूसरे जो फायदे हम उठा रहे हैं, उनका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते।
यहाँ तक कि इंसान जब अपनी पलकें झपकाता है तो उससे बेशुमार फायदे उसके जिस्म में जो होते हैं उसका वो हिसाब भी नहीं लगा सकता। और चौथा माना इसका ये बनता है कि अल्लाह जब अता करता है तो जरूरी नहीं कि वो इस बात का हिसाब रखे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं, तुम उसके लायक हो या नहीं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने मैनेजर से कहते हैं कि अब मेरी सैलरी बढ़ा दें आप, तो वो पूछता है कि तुमने किया ही क्या है जो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं। या आप बोनस मांगते हैं तो कहता है कि तुमने क्या किया है जो तुम्हें बोनस मिलना चाहिए। लेकिन अल्लाह बेहिसाब देता है। अल्लाह जब देता है तो वो इस चीज का हिसाब नहीं रखता कि तुम इसके लायक हो या नहीं, तुमने क्या किया है इस चीज को पाने के लिए। हो सकता है कोई शख्स थोड़ा सा काम करके भी बहुत ज्यादा कमा ले और कोई दिन भर मेहनत करके भी थोड़ा सा कमा पाए। ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह इसका हिसाब नहीं रखता कि तुम कितना डिजर्व करते हो या नहीं। और एक और माना जो इसका बनता है वो ये है कि अल्लाह जब अता करता है तो बेहिसाब देता है, यानी कितना दे, क्या जरिया होगा, वो किसी का मोहताज नहीं। जब मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है तो फिर उसे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि कहां से आएगा और कैसे आएगा, बस उसे कोशिश करते रहना है। अल्लाह खुद रास्ते निकाल देता है। जहां हमारी अकल काम करना बंद कर देती है वहां से अल्लाह अता करता है। तो ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं। और रिस्क सिर्फ खाना पीना नहीं, पैसे नहीं, सेहत भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है, औलाद भी रिस्क है, और अल्लाह बेहिसाब देता है। और दुनिया में तो फिर भी एक लिमिट है, लेकिन जन्नत में तो बेहिसाब ही है। आगे आने वाली दो आयतें, यानी आयत नंबर 213 और 214, ये दोनों आयत दीन का बहुत गहरा फलसफा, बहुत बड़ी फिलॉसफी समझाती है। इसके पीछे बहुत से हिडन मीनिंग्स हैं और बहुत सी हिकमत है पीछे छुपी हुई। आज के वक्त के बहुत से सवालों के जवाब देती है ये आयतें। ज्यादातर यंग बच्चे और यूथ जिस तरह के सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कैसे पता कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, और अगर अल्लाह चाहता है कि हम सब इस्लाम को फॉलो करें तो फिर इतने सारे दीन क्यों बने। अल्लाह ताला यहां हमें इन सारे सवालों के जवाब देते हैं। आयत नंबर 213, कानन नासु, थे लोग, उम्मतन, उम्मा, अम्मा या उम्मू से है और इसका मतलब है किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना। उम्मत का रूट है हमजा मीम मीम। और उम्मत किसे कहते हैं? जब लोग एक दूसरे से एक मकसद के लिए जुड़े होते हैं, सब एक मकसद को हासिल करने के लिए एक डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, सबकी सोच एक जैसी होती है, तो ऐसे लोगों के ग्रुप को उम्मत कहते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कान नासु उम्मतन वाहिदतन। वाहिदतन का रूट है वाव हा दाल, एक के लिए आता है, यानी पूरी दुनिया जब शुरू हुई तो शुरुआत में सारे लोग एक ही उम्मत थे, सारी इंसानियत एक उम्मत थी। फिर वो आपस में बट गए, फिरकों में बट गए, फिर वो एक उम्मत नहीं रहे। अब ये बात तो यहां नहीं लिखी, फिर मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि यहां कहा गया है कि इंसानियत एक उम्मत थी यानी कि अब नहीं है। फिर बात खुद ब खुद कंप्लीट हो जाती है। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो दीन इस्लाम लेकर आए। अल्लाह ने पहले इंसान से ही नबूवत शुरू कर दी थी, इंसानियत को कभी बगैर हिदायत के नहीं छोड़ा। और आदम अलैहिस्सलाम के वक्त सभी लोग अल्लाह ही की इबादत करते थे, वो सब लोग एक ही उम्मत थे। और बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ी तो धीरे धीरे इख्तिलाफ बढ़े और फिरके हो गए और वो आपस में बट गए। तो जब लोग आपस में बट गए फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा, फबाअसल्लाहु, फिर भेजा अल्लाह ने, अन नबीयीना, नबियों को, मुबश्शिरीना, खुशखबरी देने वाला, व मुनजीरीना, और डराने वाला बनाकर। नबीयीना नबी की जमा है, यानी प्लूरल है। नून बा हमजा इसका रूट है, द प्रॉफिट्स अंबिया के लिए आया है। तो अल्लाह ने नबी भेजे, फिर अल्लाह ने उनके बीच इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए, लोगों की हिदायत के लिए नबी भेजे। नबी आते लोगों के गलत अकीदे को, गलत तरीके को की इस्लाह करते, तौहीद कायम करते और दुनिया से चले जाते। फिर लोग दीन में अपने मन मुताबिक तब्दीलियां कर लेते, फिर अल्लाह दूसरे नबी भेजते और वो पुराने नबी की बातों को कंफर्म करते और फिर जो गलतियां उनके बीच हो जाती उससे सुधारते, फिर से उनकी इस्लाह करते, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहा।
اللہ نے کبھی کسی امت کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. امتوں کے پاس نبی آتے رہے، کتابیں آتی رہی، ہدایت آتی رہی، اور اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. مبشرینہ کا روٹ ہے باشین را. اس ورڈ کو ڈیٹیل میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. مبشرینہ مطلب ہے خوشخبری دینے والے، یہ پلورل ہے. وہ لوگ جو خوشخبری سناتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، وہاں جنت ہے. جو شخص ایمان لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا اور ساتھ ہی نیک عمل کرے گا تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں جنت ہے. بشرا یبشرو تبشیر سے ہے. تبشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، گڈ نیوز سنانا. نبی لوگوں کو خوشخبری دیتے، بشارت دیتے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں. ان کے لیے آگے جنت ہے، ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے. وَمُنذِرِينَ، نون ذا را اس کا روٹ ہے. انذر ینذر انذار، ڈرانا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، وارن کرنا، ڈرانا، خطرے سے آگاہ کرنا. نبی کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے. لوگوں کو ڈرائے کہ تاکہ لوگ غلط کاموں سے رک جائیں. تو جتنے بھی نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارے، ان کے یہ دو میجر کام تھے. وہ لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. انزلہ، اور اس نے نازل کی. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. معہم، ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ. الکتاب، کتاب. اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. کتاب کون سی چیز ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئی. بالحق، ساتھ حق کے. حق کا معنی ہوتا ہے ثابت، سچی چیز. ٹھیک ہے. دوسرا حق کا معنی ہوتا ہے مقصد یا پرپز، یعنی اللہ نے کتاب کو ایک مقصد کے لیے اتارا، ایک پرپز ہے اس کا. لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی ما، اس میں جو اختلف، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، جس میں، یعنی دین میں یا دنیا کے کسی معاملات میں جس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ نے نبی اتارے، کتابیں اتاری تاکہ ان کی ہدایت ہو سکے، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے. لیحکما، تاکہ وہ درمیان ان کے فیصلہ کرے. اختلاف میں نبی اور اللہ کی کتاب کا مقصد ہے لوگوں کے اختلاف کو سلجھانا اور حق کو واضح کرنا، تاکہ لوگ پھر سے ایک ہو جائیں، ایک امت ہو جائیں. یہ تب ہوگا جب اس کتاب کو اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. جب لوگ آپس میں لڑیں تو اس کتاب کی طرف آئیں تاکہ انصاف ہو سکے. حق کا ایک معنی عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. حق کا ایک معنی رائٹس بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، تو یہ سارے معنی فٹ ہوتے ہیں یہاں پر. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے، کسی کے رائٹس کیا ہیں. یہ کون بتا سکتا ہے اللہ کے سوا؟ آپ دیکھیں، اگر ہم دنیا کو لوگوں کے انصاف پر چھوڑ دیں تو کبھی انصاف قائم نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا سچ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کے لیے صحیح غلط الگ ہوتا ہے. انسان پارشیلٹی کرتا ہے، اس کی سوچ کے مطابق صحیح غلط کے فیصلے کرتا ہے. اسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. مان لیجئے اگر مردوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ گھر کے اندر کے سارے ڈیسیجنز لیں گے. ڈیسیجنز یعنی کہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کس کے حق ہیں، کیا کس کے حقوق ہیں، عورت کے حقوق کیا ہیں، وائف کے حقوق کیا ہیں، ہسبینڈ کے کیا ہیں، کیا ان کے رولز ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ان کے رائٹس ہیں. اگر یہ سارا فیصلہ کرنے کا اختیار مردوں کو دے دیا جائے تو عورتوں کے ساتھ، وائفز کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اگر عورت کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ رول سیٹ کریں، وہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز سیٹ کریں، تو وہ مردوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. کیونکہ انسان فطرتی طور پر خود غرض ہوتا ہے، وہ پارشیلٹی کرتا ہے. اگر عورت کو یہ حق دے دیا جائے تو وہ سب کچھ اپنے فیور میں کر لے گی یا مردوں کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی. مردوں کو اگر یہ دے دی جائے اتھارٹی تو وہ فیصلے اپنے فیور میں کریں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر ہم کسی کمپنی کی بات کریں، اگر امپلائی اور امپلائر ہیں تو ان کے بیچ میں جو امپلائی ہوتا ہے وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ کم سے کم کام کرنا پڑے اور زیادہ سے زیادہ سیلری ملے. اور اس کے برعکس
जो एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करे और कम से कम उसे छुट्टियाँ दी जाए और कम से कम उसे सैलरी दी जाए। तो इन दोनों में से अगर किसी एक को फैसला करने का इख्तियार दे दिया जाए तो वो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसी तरह से आप देखें, सरकार है और लोग हैं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लिया जाए और कम से कम सर्विसेज़ दी जाएँ। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ दी जाए और कम से कम टैक्स लिया जाए। हर एक की नज़रों में सही और गलत फ़र्क है, क्योंकि वो दूसरे का नज़रिया समझ ही नहीं सकता, दूसरे की तकलीफ़, दूसरे की खुशी, उसको वो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है, वो यानी मर्द औरत नहीं है और औरत मर्द नहीं है। तो वो एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की चाहत को, एक दूसरे की इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। और इसके अलावा हर सोसाइटी में, हर हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में, हर कंट्री में लोगों की सोच में फ़र्क है। जैसे कपड़ों को ही ले लीजिए। एक सोसाइटी में औरत का लिबास पूरा ढका हुआ होना चाहिए और वो सही है। किसी दूसरी सोसाइटी में, दूसरी कम्युनिटी में, किसी दूसरे कल्चर में औरत को इतना अपने आप को ढाँक कर रखना ज़ुल्म है। कहीं पे साड़ी पहनना डिसेंट है और कहीं पर साड़ी पहनना इनडिसेंट है, क्योंकि वो समझते हैं कि पेट नज़र आ रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें तो औरत चाहे जितने छोटे कपड़े पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ डिसेंट है उनके लिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन वही औरत अगर मान लीजिए इंडिया आ जाए, तो कहेंगे देखिए कितने इनडिसेंट कपड़े पहने हुए हैं। इसको एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में, किसी कम्युनिटी में आदमी और औरत एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सिर्फ़ सलाम कहते हैं या हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और ये डिसेंट है। इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में हाथ मिलाना बिल्कुल नॉर्मल है और अगर वो हाथ ना मिलाए तो समझते हैं कि उसने सामने वाले की इंसल्ट करी। कहीं एक दूसरे को गले लगाना भी बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं लोग जब हाथ मिलाते हैं तो जेंट्स लेडीज के हाथ पर किस करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है, अलाउड है कुछ सोसाइटीज में। तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, क्या डिसेंट है, क्या इनडिसेंट है? अल्लाह डिसाइड करेगा। अल्लाह ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वही सबको एक जैसी मोहब्बत करता है। वो सबके साथ इंसाफ करने वाला है, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो। वो इंसान के दिल को, उसकी सोच को, उसके अट्रैक्शंस को, उसकी लिमिट्स को, हर चीज को समझता है। उसने इंसान को बनाया है। कायनात, इस दुनिया को बनाने वाला है वो। वही सही फैसला कर सकता है, वही बता सकता है कि क्या हक है, क्या इंसाफ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। वह मख्तलफू, और नहीं इख्तिलाफ किया, फी ही, उसमें, किसमें? दीन में, नबियों में, किताबों में, इल्ला, मगर, अल्लदीना, उन लोगों ने जो, ऊतूहू, जो दिए गए उसे, जिसे किताब का इल्म दिया गया, जिन्हें किताब दी गई, उन्हीं लोगों ने इसमें इख्तिलाफ किया। मिम बादी, बाद उसके, मा, जो, जाअतहुम, आई उनके पास, अलबय्यिनतु, वाज़ेह निशानियां, बग़यन बैनहुम, बवजह जिद के, बैनहुम, आपस में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और इस किताब में इख्तिलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी, बाद उसके कि आ गई उनके पास वाज़ेह दलील। किसकी वजह से? आपस में जिद की वजह से। मा जाअतहुमुल बय्यिनात, जो रोशन दलीलें, बय्यिनात, उनके पास आ गई। बय्यिनात, बय्यिना की जमा है, क्लियर साइंस, रोशन दलीलें, यानी क्लियर प्रूफ्स। ये किन की बात हो रही है? वो जो किताब दिए गए। इससे एक माना ये है कि वो जो किताब का इल्म दिए गए, यानी उलमा, जिनके पास वाज़ेह दलील आ गई, क्लियर प्रूफ्स आ गए, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अब लोगों को सच्चाई बताएं, वो खुद ही इख्तिलाफ में पड़ गए। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया लोगों के दरमियान, बजाय इसके कि वो लोगों को हक बताएं, लोगों तक हक पहुंचाएं, वो आपस में लड़ पड़े। एक कहता है कि मेरी बात सही है, मैं जो बताता हूं वो सही है, मेरा रास्ता सही है और दूसरा गलत है, और दूसरा भी यही बात कहता है। एक दूसरे पर लेबल्स लगाने लगे, एक दूसरे को गलत ठहराने लगे और एक दूसरे पर लानत तक बोलने लगे।
लेकिन ये याद रखें कि ये आयत जब नाजिल हुई थी, मुसलमान एक उम्मत थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, उनके बीच मुनाफिक जरूर थे कुछ, लेकिन उम्मत एक थी, आपस में एक दूसरे का कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ था बनी इसराइल और नसारा के दरमियान, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में हमें आगाह कर रहे हैं मुस्लिम्स को, क्योंकि अल्लाह को पता था कि आगे हम भी इन्हीं फितनों में पड़ने वाले हैं। और कौन पैदा करेगा ये इख्तिलाफ? वो जो किताब का इल्म रखते हैं, वो जो आलिम है। आलिम ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास लोग दीन को समझने के लिए आए, जब वो कहीं उलझे तो वो उनकी उलझनों को सुलझाए, लेकिन उन्होंने तो मामला और बिगाड़ दिया। सब आलिम ऐसे नहीं होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, बल्कि उनकी बात कर रही हूं जो ऐसे हैं। अब आप देखें, इस आयत को पीछे से करेक्ट करें। पीछे हमने पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठी बातें करके लोगों को अपने जाल में फांस लेते हैं और फिर बाद में पीठ पीछे फसाद फैलाते हैं। क्या ये लोग उलमा भी हो सकते हैं? जी हाँ, दीन के उलमा भी हो सकते हैं। फिर पीछे हमने ये भी पढ़ा कि मोमिन अल्लाह की बताई हुई हदों में रहता है, तो जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, यानी काफिर मोमिन का मजाक बनाते हैं, फिर भी अगर वो शख्स दुनिया की अट्रैक्शंस को छोड़कर दीन की तरफ आता है, होता है ना कई बार कोई शख्स दुनिया से हार जाता है, थक जाता है, उसे दुनिया में वो सुकून कहीं नहीं मिलता, उसे हर तरफ से धोखा मिलता है, उसे कोई अपना नहीं मिलता, वो अकेला पड़ जाता है, वो मुसीबतों में होता है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ लौटता है और वो चाहता है कि अब मैं अल्लाह की तरफ लौटूं, और वो समझने लगता है कि अब मुझे अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए क्योंकि आखिरकार मुझे उसी की तरफ लौटना है। तो अब ऐसा शख्स ढूंढता है सही रास्ता, वो जानना चाहता है कि सही रास्ता क्या है, और वो जो उसे सही रास्ता बता सकते हैं वो तो आपस में उलझे हुए हैं, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अब ये शख्स कहाँ जाए? वो देखता है कि दीनदार लोग तो दुनिया के लोगों से भी बदतर है, एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे के लिए नफरतें फैलाना, आपस में लड़ना, इसकी वजह से दीन और इस्लाम दोनों बुरे दिखते हैं। और अब वो लोग और वो चीजें जो दुनिया की चकाचौंध की तरफ खींचती है, वो अपना काम ज्यादा आसानी से कर लेती है, वो उसे अपनी तरफ दोबारा खींच लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अगर दीन ऐसा है तो इससे अच्छा तो मैं पहले था। और अगर कोई उसके बाद भी दीन की तरफ आ जाए तो वो अल्लाह का बंदा नहीं बनता, वो उस फिरके का बंदा बन जाता है, उस फिरके की तरह सोचने लगता है, और लोगों में उसका भी वही काम होता है, आगे नफरतें फैलाना। क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो तुम्हें सच्चे दीन से जोड़ें, तुम्हें सच्चा दीन सिखाएं, तुम्हें किताब से जोड़ें, अल्लाह से जोड़ें, दुनिया की गलत अट्रैक्शन से दूर रखें और तुम्हारी मदद करें, वो तो खुद इख्तिलाफ में पड़े हैं, वो तो खुद अपने आप से लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। तो अब इस बात को समझें कि असल प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, दुनिया की अट्रैक्शंस नहीं है, असल प्रॉब्लम हमारे अंदर है। क्योंकि दुनिया की प्रॉब्लम्स का सलूशन तो अल्लाह ने दे दिया है हमें इस किताब में, इस कुरान मजीद में। ये कुरान है जिसके अंदर हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन इसको जानने वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये असल प्रॉब्लम है। और इसका नतीजा क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला सूरत शूरा में फरमाते हैं कि इससे आने वाली जनरेशन इस्लाम से फिर जाएगी, इस्लाम छोड़ देगी, और इतना ही नहीं, दूसरों को भी दीन से रोकेगी। और ये हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, किस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जाते हैं इस्लाम के खिलाफ, स्पीचेस देंगे, डिबेट्स करेंगे, सड़कों पे लोग उतर जाते हैं, एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बना के उनका मिशन होता है कि लोगों को इस्लाम से रोकें, और ये खुद मुस्लिम बच्चे कर रहे हैं। फिर इसी आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बताया कि उलमा इस तरह से क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि मैं सारे आलिम, सारे उलमा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग सिंसियरली दीन की खिदमत करते हैं, कुछ लोग सच्चे आलिम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की खिदमत और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ गलत लोगों की बात हो रही है। और वो क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि बगियन बैनहुम सिर्फ आपस में जिद, बुग्ज, हसद की वजह से। बगियन का एक माना होता है मुकाबले की वजह से, कि कौन किससे बेहतर है, किसको लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, कौन ज्यादा मशहूर है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स है, पावर शो।
اور بغی کا ایک معنی گریڈ یا لالچ بھی ہوتا ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دنیا کے اٹریکشنز میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں علماء دیندار لوگ دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. بغی کا معنی جیلسی ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہے، جلن ہے. جیسے اس کو کیوں لوگ پسند کرتے ہیں، یہ کیسے میری مسجد میں امامت کی نماز پڑھا سکتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، اسے کیا علم ہے کہ یہ کوئی لیکچر دے یا کچھ سکھائے، یہ کیوں آخری لیکچر دے رہا ہے، میں کیوں نہیں دے رہا، آخری لیکچر تو میرے لیے ہونا چاہیے، مجلس تو میں ختم کروں گا، آخر میں تو میں پڑھوں گا، یہ کیوں پڑھ رہا ہے. بغی گھمنڈ اور پرائیڈ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں. تو یہ سارے معنی یہاں پہ اس ایک ورڈ بغی کے نکلتے ہیں، جیلسی، پرائیڈ، گریڈ، کمپٹیشن، اس ایک ورڈ کے یہ سارے معنی ہیں. اچھا، کیا یہ سب کچھ جابز میں، کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، وہاں تو ہوتا ہے کیونکہ وہاں لوگ دنیا کے کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان فتنوں سے دور رکھے اور ہماری نیک اعمال کو اس کے ذریعے ضائع نہ کرے. فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین، انہیں جو آمنو، ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو عالم ہیں وہ آپس میں ضد اور بغی کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور دین میں بھی اختلاف پھیلاتے ہیں، خود بھی اختلاف کرتے ہیں اور دین میں بھی اختلاف پھیلاتے ہیں. تو اب مومن کہاں جائے، کہاں سے دین سیکھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود، اللہ خود ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے. اس میں جو اختلاف ہوا، من الحق، کی حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. آپ دیکھیں اس کے علاوہ پورا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے، معلومات کا طوفان ہے. ٹو مچ آف انفارمیشن از اویلیبل. جب اتنی معلومات ملتی ہے، اتنی انفارمیشن ملتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنو، جو ایمان لائے، جو اللہ کی ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم والوں کو ہدایت دی، بلکہ یہ کہا کہ ایمان والوں کو ہدایت دی. جو شخص ایمان لائے گا اللہ پر، اللہ خود اس کی مدد کرے گا. اس کے باوجود کہ اس دنیا میں اتنے سارے اختلاف ہیں، اتنے فرقے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ سیدھا دل میں ہدایت دیتا ہے. اس کو خود پتا چل جائے گا اس شخص کو کہ اسے کسے سننا ہے، کسے نہیں سننا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کس کتاب سے ہدایت لینی ہے، کس سے نہیں لینی ہے. خود اللہ اس کو ہدایت دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ دل میں ایمان ہو. اور سب سے بڑی بات، اس قرآن میں حق ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو. اس کتاب میں اللہ نے مومن کی حق کی طرف رہنمائی کی ہے. فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. یعنی وہی رستہ جو صحیح، مستقیم، اللہ تک جاتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے. یعنی ہاں ہے، دین میں اختلاف بھی ہے، معلومات کا طوفان بھی ہے، کنفیوژنز بھی ہے، ڈاؤٹ بھی ہے، سچے رہنماؤں کی کمی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کریں، چاہے کسی دین کا لیکچر سنیں، چاہے کسی اسکالر کو سنیں، چاہے کسی کتاب کو پڑھیں، چاہے انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو دیکھیں یا کوئی آڈیو سنیں، کچھ بھی کریں دین کی طرف، یہ صرف آپ کی کوشش ہے، آپ کے ایفرٹس ہیں. اصل ہدایت مجھے اور آپ کو صرف اللہ دیتا ہے. من یشاء کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. ایک یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہے، جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے. صراط مستقیم، سیدھے رستے کی. اس آیت کو ایک بار دوبارہ پورا دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکے جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اور اس میں اختلاف صرف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، جبکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی. آپس میں بغض اور حسد کی وجہ سے
پھر اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے ان حق باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اپنی اجازت سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.